بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ غیر ملکی شوہر سے سعودی خاتون کی اولاد کے لیے سہولتیں۔ ٹائر سکریچنگ کی ویڈیو بنانے والا شہری گرفتار۔ نوجوان سعودی خاتون نے مرد غلبے کے ماحول کو کیسے توڑا؟ لیبیا میں جنگ بندی کا مستقل معاہدہ، سعودی عرب کا خیر مقدم۔ سعودی ویمن سول ایسوسی ایشن بنانے کا فیصلہ۔ حوثیوں کا ایک اور ڈرون تباہ، حملہ ناکام۔ کورونا کے نئے کیسز مسلسل 400 سے کم۔ ریاض میں میوزیکل فوٹوگرافی کی نمائش۔ السعودیہ کا اگلے ماہ سے 33 شہروں کے لیے فلائٹس کا دوبارہ آغاز۔ تنوما پہاڑی جنگلات میں آگ، 5 اہلکار زخمی۔ عمرے کا اعادہ اور اجازت نامہ کینسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سعودی عرب نے متعدد قانونی احکامات اٹھاتے ہوئے غیر ملکیوں سے سعودی خواتین کی اولاد سے متعلق اہم فیصلے جاری کیے ہیں۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق سعودی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر غیر ملکی شوہر سے سعودی خاتون کی اولاد مملکت میں مقیم ہوگی تو انہیں ماں کی کفالت میں اقامہ دیا جائے گا۔ اگر وہ مملکت سے باہر سکونت پذیر ہوگی تو ایسی صورت میں ماں اسے اپنے اقامے پر مملکت بلا سکتی ہے، بشرط یہ کہ ان کا امن ریکارڈ صاف ہو۔ سعودی حکومت نے ایک فیصلہ یہ کیا ہے کہ سعودی خاتون کی غیر ملکی اولاد کی اقامے کی فیس سرکاری خزانے سے ادا کی جائے گی، جبکہ انہیں نجی اداروں میں نقل کفالہ کے بغیر ملازمت کی اجازت ہوگی۔ علاوہ ازیں تعلیم اور علاج معاملے میں ان کے ساتھ سعودیوں جیسا برتاؤ کیا جائے گا اور نجی اداروں میں انہیں سعودی جیسا شمار کیا جائے گا۔ سعودی حکومت نے ان سہولتوں کے حصول کے لیے شرائط مقرر کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ غیر ملکی سے سعودی خاتون کی شادی متعلقہ ادارے کی منظوری سے ہوئی ہو، یا نکاح نامے کا اندراج ہو چکا ہو، یا سعودی خاتون کی غیر ملکی اولاد کے پاس ان کی شناخت ثابت کرنے والی دستاویزات موجود ہوں۔ غیر ملکیوں سے شادی شدہ سعودی خواتین کے بچوں کی تعداد 15 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ یہ اعداد و شمار سعودی عرب میں حقوق و نسواں کی جماعتوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جاری کردہ ہیں۔ جہاں تک سرکاری اعداد و شمار کے تعلق ہے تو غیر ملکیوں سے شادی شدہ سعودی خاتون کی تعداد 7 لاکھ ہے۔ 2018 میں غیر ملکیوں سے 517 سعودی خواتین کی شادی کی تھی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں سے شادی شدہ سعودی خواتین کی اولاد کی وہ تعداد حقیقت سے ہٹ کر ہے جو حقوق نسواں کے اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بیان کی ہے۔ ٹائر سکریچنگ کی ویڈیو بنانے والا شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں جدہ ٹریفک پولیس نے شہر کی ایک سڑک پر ٹائر سکریچنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹائر سکریچنگ کے خلاف کارروائی مقامی شہری کی شکایت پر کی گئی ہے۔ اسے مقررہ سزا دلانے کے لیے ٹریفک اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مقامی شہری نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ ایک سعودی جدہ کی ایک سڑک پر ٹائر سکریچنگ کی ویڈیو بنا رہا ہے، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے سامنے رعب ڈالنے کے لیے یہ ویڈیو ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر رہا ہے۔ ٹریفک پولیس نے رپورٹ کی تصدیق کر کے ٹائر سکریچنگ اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے مقامی شہری کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ نوجوان سعودی خاتون نے مرد غلبے
के माहौल को कैसे तोड़ा। सऊदी खातून नूर अल रमाह ने कभी GE पावर के लिए काम करने की तवक्को नहीं की थी क्योंकि इनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, लेकिन अल हमामा यूनिवर्सिटी की फारग अल तहसील सऊदी खातून ने उसे रकावट को मेहनत और हाजिर दिमागी के जरिए काबू करने के साथ साथ अपने जैसे दूसरों के लिए भी 400 सफ़हात पर मुश्तमिल मैनुअल तहरीर किया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में काम करने की ख्वाहिशमंद थे, लेकिन तकनीकी पस मंज़र नहीं था। नूर अल रमाह ने अरब न्यूज़ को बताया, मैंने खुद को कभी वहां पहुंचते नहीं देखा। उन्होंने मुसाबकती और मर्दों के ज़ेर असर माहौल में कामयाब होने की अक्कासी की। जब मैंने यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग की तालीम हासिल की तो मार्केटिंग कंपनी, पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कंपनी में जाने की तवक्को के लिए मैं इंजीनियरिंग कंपनी में चली गई। फ्रांस में पैदा और वहीं पली बढ़ी। नूर अल रमाह ने इब्तदाई तालीम फ्रांस में हासिल की। 17 साल बाद सऊदी अरब वापस आईं और रियाद में आबाद हो गईं। नूर अल रमाह का GE पावर के लिए रास्ता आसान नहीं था। वो कंपनी के एलिट लीडरशिप प्रोग्राम में शामिल होना चाहती थी, जो मुमलकत में हर साल सिर्फ एक ही उम्मीदवार को मुंतखब करती है। उन्हें इस प्रोग्राम में पहली बार दरख्वास्त देने पर मुस्तरद कर दिया गया था। इसमें शामिल होना बहुत मुश्किल है और एक अहम शर्त इंजीनियरिंग का पस मंज़र है। इससे कबल कंपनी के बारे में ज़्यादा मालूमात ना होने और ये जाने बगैर के कंपनी मार्केट में क्या ऑफर्स कर रही हैं। GE पावर में सेल्स और कमर्शियल इंटर्नशिप ली चुकी थी। उन्हें मुतअद्दिद मौका मिले, लेकिन ये GE पावर इंटर्नशिप ही थी जिसने तवज्जो मबदूल कर ली थी। उन्होंने कहा, आज सऊदी अरब में हमारे पास 500 से ज्यादा GE टर्बाइन्स हैं जो मुमलकत की 60% से ज्यादा बिजली पैदा करती हैं। मैं इस तरह की पेशकश को मुस्तरद नहीं कर सकी। इस मौका का तफसीली जायजा लेना चाहती थी और मुझे अपने फैसले पर अफसोस नहीं है। उन्होंने मजीद कहा, हैरत अंगेज तजर्बे की वजह से मेरा मकसद सिर्फ वहां था जिसका कोई रास्ता नहीं था। या तो इस कंपनी में कुल वक्ती मुलाजमत कर लेती या कंपनी में रहने के लिए जिस तरह से भी इंटर्नशिप बढ़ा सकती हूँ। उन्होंने अपनी हैसियत को महफूज बनाने के लिए नूर की किताब लिखी जिसमें GE से मुतल्लक हर चीज के लिए एक मैनुअल था और इसमें इंजीनियरिंग के पस मंजर के बगैर लोगों के लिए आसान बनाया गया था। जिस चीज ने मुझे नूर की किताब लिखने की तहरीक दी वो ये था कि मैंने एलिट और इंतहाई मुसाबकती कमर्शियल लीडर रहनुमा प्रोग्राम में शामिल होना था जिसे GA में CLP कमर्शियल लीडरशिप प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। मैंने उतनी ताकत महसूस की कि इंजीनियरिंग के पस मंजर की कमी मुझे रोक ना दे या मेरे लिए रुकावट ना बने। इसके बजाय मैंने 400 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तकनीकी हैंडबुक टेक्निकल सीखने को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया और मैंने इस किताब की कामयाबी की बदौलत इसे प्रोग्राम के जरिए तैयार किया। इस किताब में GE की पोर्टफोलियो, मसनूआत, गैस टर्बाइन्स, कमर्शियल शराइत व ज़वाबित, सार्फिन की दरख्वास्तें और 4 अबवाब में मुखफ़फ़ात पर बहस की गई हैं। इस किताब को लिखने की एक और वजह यह थी कि अपने इल्म को कंपनी में नए आने वालों, तरबियत याफ्ता अफराद से लेकर मुलाजमीन तक मुंतकिल करना था। मैं मिरास और कदमों के निशान छोड़ना चाहती थी। नूर ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किए बगैर इन तमाम नए मुलाजमीन को पावर बिजनेस में शामिल करने में मदद करने के लिए किया क्या। अगर मैंने ये किया तो हर कोई ये कर सकता है। वो GE ग्लोबल को भी दिखाना चाहती थी कि किस तरह सऊदी खवातीन को तवानाई के शोबे में शमूलियत का मौका मिला। मज़ामीन मरतब करने, तकनीकी ज़बान को आसान बनाने और दाखिली कोर्सों में शिरकत के जरिए अपना मकसद
हासिल किया। जब भी उन्हें किसी उलझन दरपेश आती, वो अपने आसपास या पूरी दुनिया में जीई इंजीनियरिंग के माहिरीन से मशवरा करती थी। नूर अल रमा जीई गैस पावर के साथ एक कमर्शियल मैनेजर हैं। उनका कहना था कि टीम में वाहिद खातून होने के बावजूद अपने मर्द साथियों से कभी खुद को कमतर महसूस नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज का सऊदी अरब खवातीन को बाअख्तियार बनाने और मुतासर करने का अहल है। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जो खवातीन को सुनहरी मौका फराहम करता है। लीबिया में जंगबंदी का मुस्तकिल मुआहदा, सऊदी अरब का खैर मुकद्दम। सऊदी दफ्तर खारजा ने लीबिया में जंगबंदी के मुस्तकिल मुआहदे का खैर मुकद्दम करते हुए कहा है कि लीबिया की मुश्तरका फौजी कमेटियों ने अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में जंगबंदी के दायमी मुआहदे पर दस्तखत करके काबिल तारीफ इक़दाम किया है। सऊदी हुकूमत इसका खैर मुकद्दम करती है। अल अरबिया नेट के मुताबिक दफ्तर खारजा ने बयान में कहा कि सऊदी अरब चाहता है कि इस मुआहदे से सियासी और इक़्तिसादी शोबों में मुफाहमत की राह हमवार हो। लीबिया में अमन व इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी का नया अहद शुरू हुआ हो और लीबिया के बरादर अवाम खुशहाल के माहौल से फ़ायदा उठाई। लीबिया के मुतहारब फ़रीकों ने अक़वाम मुत्तहिदा में 5 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद जुमे को जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। लीबिया की मदद पर मामूर अक़वाम मुत्तहिदा के सफारती मिशन ने फेसबुक पर इतला दी है कि जनेवा में 5+5 मुश्तरका अस्करी कमेटी के मुज़ाकरातकारों ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। लीबिया के मुतहारब फ़रीकों ने पूरे मुल्क में मुस्तकिल जंग बंदी का मुआहदा कर लिया। यह कामयाबी लीबिया में अमन व इस्तेहकाम के हसूल की जहत में अहम नुक्ता आगाज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने अपने फेसबुक पेज पर मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब बराह रास्त दिखाई, जो 10 मिनट तक जारी रही। सऊदी वुमेन सिविल एसोसिएशंस बनाने का फैसला। सऊदी अरब ने खवातीन के विजन 2030 में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकबिल की वुमेन सिविल एसोसिएशंस बनाने का फैसला किया गया है। सऊदी वज़ीर बराए इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की अहमद अल राजही ने इसका ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर का कहना है कि सिविल सोसाइटी के क़याम का फैसला मुल्क में चैरिटी सेक्टर को तरक्की देने के विजन 2030 की इस्लाहाती मंसूबे के मुताबिक एसोसिएशन रज़ाकाराना और गैर मुनफ़अत बख्श शोबे में काम में मदद करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि एसोसिएशन का मिशन खवातीन को बाख्तियार बनाना, उन्हें तरक्की फ़रोग़ और तालीम देना होगा ताकि वो कौमी विज़न के मक़ासद में हिस्सा डालें। रियासत की आइंदा माशी और सकाफ़ती तरक्की के लिए खवातीन की शराकत में मदद करें। सरकारी खबरसाई एजेंसी SPA ने अहमद अल राजी के हवाले से बताया कि एसोसिएशन ने अपना विज़न और मुस्तकिल नारा जारी किया है, जिसके मुताबिक विमेन सिविल एसोसिएशन मुमलकत में खवातीन को पायदार तरक्की के लिए बाअख्तियार बनाने के मिशन को अमली जामा पहनाएगी। एसोसिएशन के बानी खवातीन को बाअख्तियार बनाने की अहमियत से आगाह हैं। वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए खवातीन की तरक्की और तालीम को फ़रोग़ देकर उन्हें मुमलकत की सोच के साथ हम आहंग करना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि एसोसिएशन के मक़ासद में 4 तरक्याती जिन्हों पर तवज्जो दी गई है। उनका मकसद खवातीन को लेबर मार्केट के लिए बाअख्तियार बनाना है, ज़ाती महारतों को निखारना, काम के कल्चर को फ़रोग़ देना और खवातीन के लिए कारोबारी मौका पैदा करने की खातिर उनकी महारतों और रोज़मर्रा ज़िंदगी की सलाहियतों को जला बख्शना है। याद रहे कि रवां साल जुलाई में सऊदी अरब का ये ऐलान सामने आया था कि वो 2030 तक 10 लाख सऊदी खवातीन को मुलाजमतें फराहम करने का इरादा रखता है। ये इकदाम विजन 2030 के इस्लाहात प्रोग्राम के तहत उठाया जा रहा है। हौथियों का एक और ड्रोन तबाह हमला नाकाम। अरब इत्तेहाद ने शनिचर को
सऊदी अरब के जनूबी इलाके में हौथियों के एक और ड्रोन हमले को नाकाम बनाया है। अरब न्यूज के मुताबिक अरब इत्तेहाद बराए यमन के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालकी ने एक बयान में कहा कि ईरान के हमायत याफ्ता हौथी बागियों की जानिब से भेजे गए एक ड्रोन को रास्ते में ही रोककर तबाह कर दिया गया। तर्जुमान ने कहा है कि मुसल्हा ड्रोन जिसे तबाह किया गया उसका हदफ आम शहरी थे। याद रहे कि जुमे को भी हौथी दहशतगर्दों ने जनूबी शहरी इलाकों को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे अरब इत्तेहाद की फोर्सेस ने नाकाम बनाया। कोरोना के नए केसेस मुसलसल 400 से कम। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। शनिचर को 400 से कम नए मरीज सामने आए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक शनिचर 24 अक्टूबर को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 395 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुल्क में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,44,552 हो गई है। सबक न्यूज ने वजारत सेहत की जानब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 417 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। अब तक 3,30,995 अफराद इस मर्ज से शफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता रोज कोरोना से 17 अफराद हलाक हुए। इस तरह मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 5,281 हो चुकी है। ममलकत में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 8,276 रह गई है, जिनमें से 788 मरीज इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के नए केसेस की सबसे ज्यादा तादाद मदीना में रही, जहां 85 नए मरीज सामने आए हैं। यम्बो 42, रियाद 37, मक्का 32, अल हफूफ 19, जद्दा 14, अल मुबर्रस 13, खमीस मशीद 9, हाइल 9, दमाम 8, बरीदा 7 और ताइफ में 7 केसेस का पता चला है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 19 शहरों में मरीजों की तादाद 1-1, 12 शहरों में 2-2 और 8 शहरों में 3-3, जबकि 2 शहरों में 4-4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सऊदी अरब में मुतअद्दी अमराज से बचाव और वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात का सिलसिला जारी है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है और हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। तर्जुमान का कहना था कि कोरोना के केसेस में कमी के हवाले से अब तक तमाम इशारे उम्मीद अफसा हैं। रियाद में म्यूजिकल फोटोग्राफी की नुमाइश। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के डिप्लोमेटिक जोन में म्यूजिकल फोटोग्राफी की नुमाइश का इफ्तिताह सऊदी अरब में मुतय्यन अल-तालवी सफीर रोबर्टो पेन्योटोनी ने किया। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी अरब में इटली के सफारतखाने ने अतालवी फोटोग्राफर नेकेली एडो की तस्वीर की नुमाइश का एहतमाम डिप्लोमेटिक जोन के ताउन से किया। नुमाइश 1 दिसंबर तक जारी रहेगी। फोटोग्राफी, अछूतियात और मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाली मुख्तलिफ शख्सियात नुमाइश देखने पहुंचे। डिप्लोमेटिक जोन में मुख्तलिफ मकामात पर आर्ट फनपारे पेश किए जा रहे हैं। इनमें से हर एक सऊदी अरब और इटली के म्यूजिक विरसे से ताल्लुक रखता है। सऊदी अरब में मुतय्यन इटली के सफीर ने नुमाइश का तारुफ कराते हुए कहा कि अतालवी फोटोग्राफर नेकेली एडो पहली बार सऊदी अरब में अपने फन पारे पेश कर रहे हैं। ये इटली के सकाफती मंजरनामे में मशहूर तरीन अछूते फनकारों से ताल्लुक रखते हैं। इस नुमाइश की बदौलत सऊदी अरब और इटली एक दूसरे को फन और सकाफत के आईने से देखने और दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे। रियाद में डिप्लोमेटिक जोन सकाफती किले का दर्जा रखता है। ये मतनूअ सकाफतों को अपने अंदर समोए हुए हैं। सऊदी अरब में तामीर और तमदन के हवाले से इसका मुनफरद मकाम है। यहाँ आए रोज कोई ना कोई सकाफती प्रोग्राम होता रहता है। नई नुमाइश इस सिलसिले की एक कड़ी है। अल सऊदिया का अगले माह से 33 शहरों के लिए फ्लाइट्स का दोबारा आगाज।
سعودی عرب کی قومی ایئر لائن السعودیہ نے اعلان کیا ہے کہ اگلے ماہ نومبر سے 33 شہروں کے لیے فلائٹس کا دوبارہ آغاز کر رہی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق ان شہروں میں براعظم یورپ، ایشیا اور افریقہ کے کئی بڑے ایئرپورٹ شامل ہیں۔ السعودیہ کے مطابق امریکہ کے لیے سفر کرنے والے سعودی شہری صرف واشنگٹن کے ایئرپورٹ جا سکیں گے۔ ایئر لائنز نے کہا ہے کہ ان فلائٹس میں صرف ان مسافروں کو سفر کی اجازت ملے گی جو سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے حوالے سے فضائی سفر کے طے کردہ حفاظتی اقدامات پر عمل کریں گے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے کئی ماہ تک فضائی سفر پر پابندیوں کے بعد مملکت کی قومی ایئر لائنز نے گزشتہ ماہ 15 ستمبر کے بعد دنیا کے 20 شہروں کے لیے اپنی فلائٹس دوبارہ شروع کی تھیں۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے تمام پابندیاں اگلے سال کے آغاز پر ختم کی جائیں گی۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے قبل السعودیہ دنیا کے 85 شہروں کے ایئرپورٹس کی فلائٹس آپریٹ کرتی تھیں۔ خیال رہے کہ عالمی وبا کے باعث دنیا بھر میں ایئر لائنز انڈسٹری کو بدترین بحران کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تنوما پہاڑی جنگلات میں آگ، 5 اہلکار زخمی۔ گورنریٹ اسیر ریجن نے کہا ہے کہ تنوما پہاڑی جنگلات میں آتش زدگی کے باعث محکمہ شہری دفاع کے 5 اہلکار جلس گئے، جبکہ قریبی آبادی کے انخلاء کا احتیاطی منصوبہ تیار کر رکھا گیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق گورنر اسیر شہزادہ ترکی بن طلال نے نماز اور تنوما ہسپتال میں زیر علاج شہری دفاع کے اہلکاروں کی عیادت کی ہے۔ گورنریٹ نے کہا ہے کہ جنگلات میں لگنے والی آگ پر 70 سے 75% قابو پا لیا گیا ہے، تاہم احتیاطی طور پر قریبی آبادی کے انخلاء کی صورت میں متبادل رہائش کی فراہمی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف گورنر اسیر ریجن شہزادہ ترکی بن طلال نے آتش زدگی پر قابو پانے کی کوشش کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ گورنریٹ نے کہا ہے کہ آتش زدگی کے باعث جنگلی علاقہ متاثر ہوا ہے، اس سے ابھی تک کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دریں اثنا تنوما پہاڑی جنگلات میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے رضاکاروں کی متعدد ٹیمیں مدد کو پہنچ چکی ہیں۔ رضاکار شہری دفاع کی ٹیموں کو مدد فراہمی کر رہے ہیں، جبکہ احتیاطی تدابیر کے طور پر قریبی آبادی میں خدمت کے لیے موجود ہیں۔ عمرے کا اعادہ اور اجازت نامہ کینسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا عمرہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ کرنے کی اجازت نامہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد اسے کینسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سابق ویب سائٹ کے مطابق ان دونوں اہم سوالات کے جوابات وزارت حج و عمرہ نے دیتے ہوئے کہا ہے کہ دوبارہ عمرہ اجازت نامہ اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک حالیہ عمرہ ادا نہ کیا جائے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے وزارت نے کہا کہ ایک شخص کو ایک وقت میں صرف ایک عمرہ ادا کرنے کی اجازت نامہ جاری ہوگا۔ اگر وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو حالیہ عمرہ ادا کر لے، پھر دوبارہ تمنا ایپ کے ذریعے دوسرا اجازت نامہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا عمرہ ادا کرنے کے لیے اسے پہلے کی طرح دستیاب تاریخوں میں دستیاب اوقات میں سے مناسب تاریخ اور وقت کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وزارت نے کہا ہے کہ ایک سے زیادہ عمرہ ادا کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، شرط یہ ہے کہ ہر مرتبہ الگ اجازت نامہ لیا جائے۔ دوسری طرف وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ عمرہ اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد کسی مجبوری کے باعث کوئی شخص اسے کینسل کرنا چاہتا ہے تو آتمرنا ایپ کے ذریعے ہی کینسل کر سکتا ہے۔ اجازت نامہ کینسل کرنے کا اختیار ایپ صارف کے پاس ہے، وہ دوبارہ جب چاہے اجازت نامہ حاصل کر سکتا ہے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ آتمرنا ایپ میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اجازت نامہ کینسل کرنے کا اختیار صارف کے پاس
ہو تاکہ وہ اپنے حالات کے حساب سے جب چاہے کینسل کر دے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اردو نیوز کی خبریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔